Hey everyone, welcome to Newsbeat. Let's talk about Kashish Ratnani and Joshua's fight. दोनों भी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वाया एक दूसरे से झगड़ रहे हैं एंड इवन उन्होंने ब्रेकअप का रीजन भी रिवील किया है. देन जोशुआ किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने की बात कर रहे हैं एंड आने वाले एपिसोड में कितने आइडियल मैचेस बनेंगे ये सब के बारे में बात करेंगे. तो अभी जो रीसेंट एपिसोड में जोशुआ ने महक के हाथ पे किस किया था उसी इशू पे कशिश रत्नानी ने बिहाइंड द सीन में एक इंटरव्यू दिया था अनुष्का को, जिसमें कशिश जोशुआ को मिडिल फिंगर दिखा रही थी. देन ये भी बोल रही थी कि जोशुआ पे उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, वो इतनी लॉयल थी कि उसने किसी और लड़के से बात भी नहीं किया. सारी लड़कियां शुरुआत से ये बोल रही थी कि जोशुआ लॉयल नहीं रहेगा, बट उसने ही नहीं सुना. जोशुआ से बेटर वो डिजर्व करती है, ये भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया. एंड एंड में कशिश रत्नानी ने यह भी बोला कि कशिश ठाकुर जो है ना वो उसे पसंद करते थे स्टार्ट से, तो मे भी अभी वो सबसे बात करेगी एंड उनसे भी बात करेगी. ये इंटरव्यू जब बाहर आया जोशुआ और कशिश के फैंस ने ये सब देखा तो कशिश को हेट मिलने लगा. ये बोला गया कि उसने फ्लिप किया है, जोशुआ को उसने छोड़ दिया. इस पे रिएक्ट करते हुए कशिश रत्नानी ने एक स्टेटमेंट दिया. So, hello people, to all the people who've been asking about my last episode. All I want to speak on that is when I went in the villa, I made a connection with only one guy, and I was with him like my 100%, like my heart and soul out. I did not go to other people, I did not speak to other guys, I didn't make connection with any other guy. I was very faithful and truthful to that person. But then all of a sudden one day, if someone writes me like a 2 pages ka letter, and if second day I see him kissing on someone else's hand, I think whatever I want to react is like my personal view, what is my personal point of view. And the people who are telling me flipper and all that bullshit, I really don't care. If it was a challenge, if you have a challenge where you have to propose someone and like whatever it is, and where you ये स्टेटमेंट बाहर आने के बाद जोशुआ ने अभी एक बड़ा सा स्टोरी डाला कशिश के अगेंस्ट, जहाँ पे ही रोट, चलो लेट्स टॉक. आई सी सम पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ बकवास इन सम इंटरव्यूज. इफ अ किस ऑन द हैंड व्हिच यू नो नथिंग अबाउट यू डिस्कस विद योर पार्टनर हु यू apparently like and trust so much. Not suddenly flip and put him down in the worst way possible in a second. Especially when he has just written you the most beautiful letter pouring his heart out. If you guys think this breakup happened because of one stupid kiss on the hand because of a task, don't worry, no one is that stupid. And this show was shot in October. People are now making a big deal out of this to gain public sympathy, and that to justify the absolute BS they have done in the show ahead. I was so very loyal and I'm openly saying it. And if people really want to start this war and start putting me down, I will quote down 100 reasons in the show and outside the show because of which I had no interest anymore in the so-called love I thought was real. The next episode will show you guys how human beings can gang up and put someone down, stating brutal lies because of their insecurities. The next episode is the reason why I'm not interested in seeing a single contestant's face after this show, sparing a couple. People apparently want to know the definitions of an alpha male, mocking some people. I will show you definitions of how is it to mess with an alpha male because I have been very clean and respectful yet. But some people can't digest that. And I have had enough when I'm being blamed and no one knows my side of the story. I was still maintaining love for the sake of what we had in the show and being very respectful and letting you fans enjoy something beautiful at the point. But it is not worth it. 10 or 100 can gang on me like you cowards did on the show. And I don't fear anyone and you can try me. I will take you all down. One more thing, if I see one more derogatory thing about me, my personal life or my character, which you have zero proof about, by any contestant, I will take legal action of character assassination and defamation against you. And trust me, one screenshot is enough to get me millions out of you. So think and act next time around. तो जोशुआ ने यहाँ क्लियरली बोल दिया है कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेगा तो वो लीगल रूट लेंगे. तो वो द सेक ऑफ व्हाट वी हैड इन द शो देयर वाज म्यूचुअल केयर एंड रिस्पेक्ट, और वो मैं मेंटेन कर रहा था बिकॉज आई ऑलवेज रिगार्डेड हर एज अ वंडरफुल गर्ल, नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम हर. पर अभी जो ये सडन फ्लिप हुआ, मेरे को पब्लिकली गिराया जा रहा है, ये अल्फा मेल मॉकिंग एंड ऑल दिस बुल क्रैप, ठीक है. और जो इंटरव्यू में बोला गया, इट शॉक्ड मी एंड आई एम डाउटिंग कि कभी वो इक्वेशन रियल भी था या नहीं, बिकॉज आप किसी को पसंद करते हो तो ऐसे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो आई ऑनेस्टली रिग्रेट कि ये डिसीजन मैंने पहले लिया भी ऑफ फॉर्मिंग दिस रिलेशनशिप, ऑलराइट, बिकॉज अब तक मैं रख रहा था क्लीन, लेकिन अगर मेरे पे कोई चढ़ेगा तो अब मैं बोलूँगा. सो जो आप दोगे वो आपको मिलेगा. गाइज, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने काफ़ी हमारे स्टोरीज देखे होंगे, काफ़ी हमने साथ में वक्त बिताया आफ्टर द शो ऑल्सो, तब तो सब ठीक था. सडनली क्यों जोशुआ को पब्लिकली गिराया जा रहा है, सडनली क्यों इस वक्त ही, क्यों? क्योंकि मौका मिला है, एज आई सेड, कि अब ये कर दो कि मैं आगे ऑडियंस से बच पाऊँ, क्योंकि जो मैंने किया वो बहुत गलत किया है. तो अभी जोशुआ को ही गलत ठहरा दो तो मैं अच्छी बन जाऊंगी. भाई मैं तो पहले दिन से लॉयल था, ठीक है.
ये टास्क के लिए था, वो सबको पता है, उनको भी पता है, ठीक है। तो शौक तो मुझे लगेगा आगे, दिल तो मेरा टूटेगा आगे। जो रीज़न एक्चुअली है जो हम लोग साथ में नहीं है वो बहुत अलग है, और बहुत सारे रीजंस है, उसमें से एक ये तो नहीं है। तो लॉजिक ये है कि आगे जाके जो मैंने जोशुआ को डिसलॉयल्टी दिखाई है, जो मैंने बकवासे जो गलत डिसीजंस लिए हैं, जहाँ ऑडियंस मुझ पे चढ़ेगी, तो बेस्ट मौका है कि ऑडियंस वैसे भी जोशुआ पे चढ़ी हुई, तो अभी इसको बली का बकरा बना दो और इसको रीज़न बना दो कि मैं जोशुआ से अलग क्यों हुई, और जो मैंने इतने बकवास चीज़ें की आ गई इस वजह से की है। जो फैक्ट है कि उस वक्त ये जो अभी हुआ है ये कभी इशू था ही नहीं, ये इशू अब बन रहा है फॉर ऑडियंस सिंपैथी। फिर सौंदर्य से आकाशलीना का एक इंटरव्यू सामने आया जो विला में ही लिया गया था। एंड ये इंटरव्यू में वो बहुत कुछ आराधना के बारे में बोलते हुए दिखाई दिए कि कैसे आराधना ने 12 जगह पे आगाज को ही कीज दिए। एंड मे बी शायद उस रात को कोई तो चीज आगाज की आराधना को पसंद नहीं आई होगी, इसी वजह से अगले दिन उसने उसे छोड़ दिया। इवन आगाज जब टावल पहन के घूम रहा था तब एवरीथिंग वॉज फ्लैट, ये भी उन्होंने बोला। बहुत वियर्ड था ये इंटरव्यू। फिर आकाशलीना ने यह भी बताया कि जोशुआ उसे देख के डोम में वगैरह स्माइल करता है, बट अभी शायद वो कनेक्शन इसलिए स्विच नहीं कर रहा क्योंकि उसने कशिश रत्नानी को वर्ड दे दिया है। उसके अलावा दे इवन रिवील कि आकाशलीना एंड श्रेय दोनों को कशिश ठाकुर पसंद है। फिर श्रेय जो है वो आराधना एंड सौंदर्य की बातें छुप छुप के रूम के बाहर से सुनती है, ये भी बोला गया। ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद सौंदर्य एंड आकाशलीना को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा क्योंकि इनडायरेक्टली वो आराधना के कैरेक्टर पे आगाज के साइज के ऊपर सवाल उठा रहे थे। एंड ये हेट मिलने की वजह से आकाशलीना ने इस पे रिएक्ट करते हुए ये fun because we also wanted you guys to understand our perspective. Like we also wanted you guys to get like some insider, like have fun with us, because we knew that this was going to go up. We knew we were being filmed, so it's not like we didn't think it through, but we wanted to be completely candid, completely real, completely honest, and involve you guys more and make it fun. Like mostly like we just wanted to make it fun because everything doesn't have to be so serious. Like right now I see the comments, I like sometimes I just like go through the comments and what people are thinking, and everything is like being taken so seriously. Like don't chill out a little bit. I would like, it's my humble request, think about it from like a different perspective, have fun, be entertained. That's what it's about. And I know it's about love and like romance and all of that, but like what about love, there are so many things about love. Like आगाज ने भी एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे सेड कि शो पे सारे कंटेस्टेंट्स ने कुछ ना कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट बोला ही बोला है, बट अभी आफ्टर द शो ही इज फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ देम, तो वो ये चीज को लेट गो कर रहे हैं। फिर अपकमिंग डोम सेशन में ओरेकल ओपन हो जाएगा। आइडियल मैच है कि नहीं है ये चेक करने कपल्स चले जाएंगे। शिवम जो आए हैं ना वो आराधना के साथ कनेक्शन बनाने वाले हैं। अभी जस्टिन, साक्षी, पेमा, आमिर एंड कशिश आकाशलीना को ओरेकल के सामने जाते हुए दिखाया गया है। एंड चांसेस सबसे ज्यादा है दैट कशिश ठाकुर एंड आकाशलीना एक आइडियल मैच बन जाए, और ऐसा लग रहा है कि ये तब होगा जब आकाशलीना को दूसरे कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, एंड तभी ये ट्विस्ट आएगा कि आकाशलीना किसी एक पर्सन के साथ ओरेकल के सामने जा सकती है, एंड हो सकता है कि उस मोमेंट पे वो कशिश ठाकुर को चूज कर ले। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कशिश रत्नानी एंड जोशुआ का जो झगड़ा चल रहा है उसमें आपको कौन सही लगता है एंड कौन गलत। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।